جو باتیں میں کر رہا ہوں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں اور آپ سب کے لیے بھی کر رہا ہوں. جی جی بالکل رائٹ. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ایک اعتدال کی زندگی گزارنی چاہیے، اعتدال کے اندر رہیں، آپے سے باہر نہ ہوں. مردوں کے کچھ اپنے حقوق ہیں جو عورت کے لیے لازم ہیں، جو عورتوں کے اپنے حقوق ہیں جو مردوں کے اوپر لازم ہیں. عورت کے حقوق کیا ہیں؟ شادی ہو گئی ہے ایک جگہ، بس تم ایک جگہ بند گئی ہو محترمہ. یہ شریعت نے تمہیں باندھا ہے، تمہارے خدا نے تمہیں باندھ دیا ہے، بس وہ یہ سب تمہارے لیے. تمہارے جتنی بھی درینہ محبتیں تھیں بھول جاؤ، بس اس کو دفن کر کے تو تم نے زندگی شروع کرنی ہے. ہاں، رتی برابر بھی سابقہ محبتوں کو اگر ادھر لائی زندگی تو خراب ہوگی نا، گیا پھر کام، وہ گیا، وہ نہیں بچنا. وہ آج نہیں تو کل کم کھل جانا ہے. ہاں بالکل وہ یہ نہ تو کہو کہ میں چھپ چھپا کے جو مرضی کرتی، نہیں کھل جانا ہے. تو بھول جا کہ یہ اللہ نے، یہ اللہ بھی اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے. وہ جڑا شوہر ہے تیرا وہ اللہ کا بندہ ہے، اللہ نے اس کے اوپر کھول دینا ہے. ہاں اسی طریقے سے جو مرد ہے، مرد کے پھر اپنے معاملات ہیں. سوچ رہی ہوں ایسا نہ ہو کہ تو مردوں کے پھر اپنے معاملات ہیں کہ مردوں تمہاری اگر جتنی بھی محبتیں پیاریں تھیں لیکن اب شادی ہو گئی ہے نا، اب سب کچھ دفن کر دو. اول تو وہ کام ہی غلط تھا جو تم نے کیا، وہ غلط تھا، حرام تھا. اور اگر بالفرض انسانی ناطے سے ہو گیا، غلطی ہو گئی تو اب نہیں بھائی، اب ختم، اب کچھ اور ہو گیا ماں، بالکل اب کچھ اور ہو گیا. بھول گئے تھے. اب یہ ہے کہ وہ جو تو لے کے ہے نا، اب ساری محبتیں پیاریں اس ایک خاتون کے لیے تیری ہونی چاہیے. بے شک وہ تیری محبتوں کا مرکز ہے اور وہ تجھ سے محبت چاہتی ہے، بس تیری توجہ چاہتی ہے. بالکل. تو تم دونوں اب خود دیکھو کہ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ ہے، ماں باپ کا رشتہ بعد میں ہے. پہلا رشتہ جو ہے نا میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، اتنا مقدس رشتہ ہے. یہ بہن بھائیوں کے رشتے بعد میں، میاں بیوی کا رشتہ پہلے. یہ کائنات کو اللہ نے اس طریقے سے ڈیزائن کیا ہے، یہ اللہ جو اس کا ڈیزائنر ہے وہ تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتنا مقدس رشتہ ہے. تو ان رشتوں کو پامال مت کرو. بچے ہو جاتے ہیں اور جناب چھوٹی چھوٹی وجہ سے وہ آپس میں الجھتے ہیں بچوں کے سامنے. جب یقین جانیے تو بہرحال یہ ہے اچھا کہ بچے جب ہو جائے، کم از کم اگر تم نے لڑائیاں جھگڑے کرنے ہیں نا تو اولاد سے پہلے کر لو، ویسے تو کرنے ہی نہیں ہے. لیکن جب اولاد ہو جائے تو اولاد کے سامنے ایک بول بھی نہیں بولنا، مرد و عورت نے کبھی بھی نہیں. وہ بچوں کے اوپر اتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. بالکل ان کی زندگیاں برباد کرتے ہو تم. یقین مانو وہ بچے صحیح جو پڑھتے نہیں ہیں نا، اس کی مرکزی وجہ تمہاری کل ہوتی ہے. وہ خوف و ہراس کے اندر رہتے ہیں بچے، وہ بولتے تو نہیں ہیں لیکن وہ خوف و ہراس جو کچھ دن بھر میں دیکھتے ہیں ماں باپ کا جھگڑوں کو، معاملات کو. اسی طریقے سے ایک اور چیز بچوں کے اوپر بڑی اثر انداز ہوتی ہے کہ چھوٹا بچہ اس کے سامنے اس کی ماں بیٹھ کے کسی غیر مرد سے بات کر رہی ہے یا اس کو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے وہ دیکھ لیتا ہے وہ بچہ، وہ اگرچہ وہ بولتا نہیں ہے یا مطلب وہ آپ کو محسوس نہیں کراتا، لیکن اس کی جو ڈائری اللہ نے بنائی ہوئی ہے وہ اس میں وہ ہر چیز سیف ہوتی جاتی ہے. جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے نا، بڑا ہوتا ہے، اس کو وہ ساری ڈائری کھل کے سامنے آتی ہے، میری ماں تو یہ تھی. وہ پھر اولاد تمہاری ماں کی نافرمان ہوتی ہے. اسی طریقے سے اگر باپ کو اس طرح کے غلط کام کرتا تھا بچوں کے سامنے، وہ بڑے ہو کے وہ بچے پھر گستاخ، باپ کے گستاخ ہو جاتے.
असल वजह ये होती है, तुम कहते हो मेरी बच्चे में बड़े बदतमीज हैं। ओ भाई तो करतूतें तुम्हारी हैं, अपनी करतूतें तो तू भूल गया ना, असल हुआ क्या था। आज रोला ये है कि मर्द मर्द कहता है जी कसूर औरत का है, औरत कहती है जी कसूर शोहर का है। अबे यार अपना कसूर कोई भी नहीं भाई, मेरा कसूर की है, तू कह ही दे ना यार बाकी मेरा ही कसूर है, कोई बात। तो ये हर एक को अपना 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 दामन देखना है और सफाई करनी है। रमजान का महीना है, रोजा रखे हुए हैं, तो अपने नफ्स की भी सफाई करें भाई। डिबेटें तो चलो करते ही रहते हैं, मुनाजरे तो करते हैं, वो एक अलग चीज है, हमारा एक टॉपिक अलग है। तो अपनी इस्लाह जरूरी है। अब हमने ये जो जामिया खत्म नबूवत बनाया है, इसकी मरकजी जो एक मरकजी किरदार है वो यही है कि रूह की भी इस्लाह हम बच्चों की करेंगे। हाँ, तरबियत याफ्ता बच्चे हम फारग करेंगे, ना कि एक किलो काल वाले नहीं, जुबान से रटी रटाई चीजें वाले नहीं, ना ना ना, रूह की भी इस्लाह हो। बेशक जी अब अच्छा, वो जो सवाल लव इज लाइफ भाई ने किया है, तो ये है जी फतवा जाहिर के ऊपर लगता है। जाहरी अमाल अगर किसी के इस्लाम मुखालफ है तो उसको कहा जाएगा इस्लाम मुखालफ है। जाहरी अमाल या अफाल उसके इस्लाम वाले हैं तो कहा जाएगा ये मुसलमान है। बस यही है इसका जवाब। जी आप हजरात बात कर ले। माशाल्लाह मुफ्ती साहब बहुत यूं खूब। था, शाह एक साहब मिनट मुझे बात कुछ और क्लियर है। कर लेने दें प्लीज़। अच्छा शाह साहब, हुआ कुछ यूं था कि एक दिन आपकी मैं ब्राड पे बैठा था, उधर किसी ने आपसे सवाल किया था सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान पर ज़िंदा साबित होना करें, ये वो इस तरह की कोई बात चल रही थी, तो मैं भी वहीं मौजूद था। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी। जिसमें हुआ कुछ यूं था कि आपने उसे बोला कि आपको क्या ज़रूरत है कादियानियों की ब्राड पे जाने का, ये वो। मैंने फिर आपसे गुजारिश की, मैंने कहा हज़रत आपकी बात 100% ठीक है, हमें कोई ज़रूरत नहीं उनके पास जाने की, लेकिन चीज़ ये है कि हमारे पास कोई मुदल्लल बयान होना चाहिए जिस वजह से हम उनके मुंह को बंद कर सकें। जिसके बाद आपने ये बोला कि एक बंदा, आपने अपना नाम लेके कहा कि मैं घर से दही लेने गया हूँ, तो आगे में बंदर वाला खड़ा है, वो तमाशा कर रहा है, तो मुझे क्या ज़रूरत है बंदर को देखने की, मैं बच्चों के पैम्पर लेने गया हूँ, दही लेने गया हूँ, मैं अपने काम से काम रखूँ, आपको क्या ज़रूरत है जाने की। मैंने कहा शेख इन चीज़ों से हम आपको तो कायल कर लेंगे या आप हमें कायल कर लेंगे, लेकिन उन लोगों को हम ऐसे कैसे कायल करेंगे, प्लीज़ आप रहनुमाई फरमा दीजिए। आपने बोला जी आपको कोई पूछता है तो उसको इधर लेके आओ। मैंने कहा शेख ये जवाब नहीं है जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, या दूसरा भाई भी आपने उसके साथ यही किया, लिहाजा जवाब दें। फिर मुझे नीचे उतारा गया और आपके ये अल्फाज थे कि मैं बात को मतलब और क्लियर कर दूं, मैंने लास्ट पे बोला कि मैं उम्मे सिस्टर की ब्राड पे जाता हूं और वहीं पे उनसे मेरी इख्तलाफी राय ये है कि आप असरे हाज़िर के फ़ितने और लोगों को बताएं ये फ़ितने हैं, उनके हाल ये हैं, लेकिन वो चीज़ ये है कि वो उन लोगों को लेके आती हैं। तो मैंने कहा ये चीज़ मेरी उनसे मतलब सोच डिफरेंट है, तो मैं उन्हीं के पास बैठता हूँ, इसलिए वो बताती हैं कि इस चीज़ का ये जवाब है। तो आपने मुझे नीचे उतार दिया इस बात पे। आपके अल्फाज ये थे कि सारा दिन असी लोगों को चारने हैं तो सानू चाड़ना आ गया, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये जिथे बहिंदा वो भी ये ने तो ये भी हो ही है। अब मैं सिर्फ इस चीज़ की वजाहत चाहता हूँ कि आपके ये जो अल्फाज थे मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं इसको कन्फर्म करना चाहता हूँ कि ये इसका क्या मतलब था। अच्छा, गुजारा ये है कि जो आप कहानी सुना रहे हैं, इस कहानी का मुझे रत्ती बराबर भी कोई इल्म नहीं है, पता नहीं किस जमाने की आप ये कहानी सुना रहे हैं। ये आज से तकरीबन बात सुन तो लें, माइक म्यूट मैंने आपकी गुफ्तगू में बोला तो नहीं हो ना, अब माइक म्यूट तो रखे ना, बाद में बोल लीजिएगा आप, मैं बोला तो नहीं ना। ये गुफ्तगू का अंदाज भी ये होता है, बंदा एक बात कर रहा हो दूसरा फिर खामोश रहे, या तो अगर आपने बोलना है तो फिर मैं चुप हो जाता हूँ, तो आप बोल लें फिर जितना बोलना चाहते। नहीं शाह जी आप बताएं, आंसर दें इनकी बात का। हाँ तो मुझे इल्म नहीं आप कौन सी कहानी सुना रहे हैं, ठीक है। अगली बात ये है कि मसला आपने पूछा उसका हल भी मैंने बता दिया।
अब मसला वो मानना ना मानना वो आपकी अपनी खुशी है, मेरी तो नहीं है, वो तो आपकी सरदर्द है ना, मेरी तो नहीं है। तो जी अगली चीज ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा मुर्दा, ओ भाई ये मौजू ही नहीं है हमारा, हम क्यों बताएं आपको। अगर तो आपने पूछा था और अगर बिल फर्ज अभी पूछते हैं तो ये मौजू ही नहीं है, मैं आपसे डिस्कस क्यों करूंगा। मौजू ये है कि मिर्जे कादियानी को सच्चा साबित करके दिखाओ। वो पूरी जिंदगी जना करता रहा, शराबें पीता रहा, वो हराम कारियां करता रहा। हजरत ईसा जिंदा हो या मुर्दा हो, इससे मिर्जे का इसकी जिंदगी से क्या ताल्लुक वास्ता, वो कैसे सच्चा होगा साबित। बिल फर्ज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा साबित हो जाते हैं तो मिर्जा तो वहां क्या जानी का जानी रहा, शराबी का शराबी रहा, हरामकार का हरामकार ही रहा, उसको कैसे सच्चा साबित करना है, सवाल ये है। ठीक है, ये मौजू है। और खाम खा मतलब एक थर्ड पर्सन आके हमें कहे नहीं 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 वो कादियानियों वाला एक सवाल लेके आ जाए और खुद को ये कह रहा है जी मैं मुसलमान हूं। ओ भाई तू मतलब तेरे साथ कोई बनता है, हमारी कोई बात करना ये बनता ही नहीं। ठीक है ना। रही बात ये कि मैं सेटिस्फाई नहीं है तो ना हो भाई, इससे भी कोई फर्क नहीं है। पर जाके उधर जाके सेटिस्फाई हो वो या ना हो वो सानू ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਨਮ ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ, ਬਲਕਿ ਜਨਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਆ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕਾ ਲਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਡਿੱਗੋ। हाँ सही है मुफ्ती साहब। चलो बहरहाल बात करें। रात गई बात गई, लव कभी लव कभी लव भाई उन्हें याद लव भी भाई नहीं कि कभी हमने क्या कभी हो बात जाता है यार। की, भूल गए हैं। देखें नहीं मेरी बात सुने। देखें ठीक है मुफ्ती साहब की बात, मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट करता हूँ कि हमें ज़रूरत क्या है उनसे ये बात करने की कि वो ज़िंदा है या नहीं, पहले वो उसका किरदार लेके आए मलून का। मैं माजरत चाहता हूँ बीच में बात करने इस के हद लिए। तक तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद जो शेख साहब ने मुझे शाह साहब ने बोला कि मैंने इनको वाज़े बोला कि उम्मे सिस्टर के पास मैं बैठता हूँ तो वो बताती हैं, वो क्लियर करती हैं। तो शाह साहब ने मुझे बोला कि ठीक है तुम ही होना चाहिए उत्थे ही बहना, तेरी समझ आ गई है, इनू लाओ थल्ले। ये मतलब जो अल्फाज थे इसमें क्या मुझे कादियानी बनाया गया, क्या समझा गया, बाद में फिर वाज़े ये लफ्ज़ कहे गए कि ये भी कादियानी था, ये सारा दिन आते रहते हैं जाते रहते हैं। लव भाई शायद कभी ये कभी चीज़ें होता मैं है, वो ये ब्राड माजरत पर से जो है ना कहूँगा। वो हो जाती है ना गलत हो जाता है, कई बार ब्राड पर और बात चल रही होती है, कोई और मैं करे तो फिर हो जाता है ऐसा कोई। चारों उस तरफ दिन घूम से रहा है। उस यार मेरे देखें मुझे भाई बात देखें सुने, इस गलती की लाभ वजह से साहब वजह है जो लाइव भाई ये बात ਇਹ बोल रहे ਤੁਸੀਂ ਨਾ मुफ्ती ਚਲਦੀ साहब। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਦਵੋਗੇ ਤੇ ਹੱਥ- ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਹਸ਼ਰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੱਥ ਕੱਪੜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ। ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਰੀ ਸੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਤਰਬੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਿਆ, ਉਸ ਆ ਕੇ ਚਲਦੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਹੱਥ ਦੇ ਛੜੇ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਕਾ ਮਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਗਰ ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਬੇਟਰ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਵੇ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰਨਾ, ਬਸ चुक दियो फट्टे ते पा लियो लम्बे, मेरा तो काम ही ये। सारी दुनिया मुझे जानती है, मेरे मजाज से वाकिफ है, मेरे जुबान से वाकिफ है, सारे लोग हमारी मुझे जाने जो किस लिए पुराने सुनने देखने वाले हैं। हम तो अभी ये आपका मौका महल नहीं था जो आपने मौजू शुरू कर दिए अरे जी। सर हमें हुक्म करें, आप एक बार इजाजत दें। हाँ नहीं सर ये देखें, तो मैं भी मैं ਤੁਹਾਡੇ काफी ਬਾਰੇ दिनों शुरू से हो आपसे जाना। बात करना चाहता था, आपकी ब्राड पे भी जा रहा था। अच्छा चलो नहीं, महाराज बात थोड़ी ये नहीं मेहरबानी है, चुप देखो करके आप सुनो। अभी चंगी बात भली सुनना रूहानी पसंद नहीं कर गुफ्तगू हो रहे। रही है, तरबीयती प्रोग्राम इतने हो रहा है तो तुसी वेखो ना मौजू सर का रुख ही आपकी- बदल देता है फड़ के। सर भाई एक सर मिनट, आपकी इस लव भाई रूहानी आप रुके, मैं बात कर रही सर हूँ। आपकी इस लव रूहानी भाई, मैं गुफ्तगू की बताती हूँ वजह से इनको। मैंने उम्मे सिस्टर की ब्राड पे आना छोड़ दिया हाँ था, इन्होंने आना छोड़ क्योंकि दिया, मैंने ये समझा समझते शायद ये भी कादियानी कादियानियों समझते में हैं से आप है। इनको। लव भाई इस वजह से काफी अर्से ब्रॉड पे नहीं आए। भाई मैं ये तकरीबन एक महीना ब्राड पे ड्रामा बिल्कुल कर नहीं रहे आया। हैं। उम्मे सिस्टर क्या आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि मैंने कहा ये उम्मे सिस्टर कोई कादियानी है, तो ये कहना चाह रहे हैं आप क्या? ये बताइए मुझे, मैं तो अब समझाऊं आपने कि मुझे आप बोला ये कहना क्या उधर चाह रहे बैठता है, थे। ये भी लवर वही है वो भी बॉय, वही लवर है। बॉय मेरी बात सुनो भाई, आप मुसलमान हो सारी ना, ये या भाई आप ड्रामेबाजी ना मुसलमान करो, हो ना, समझ आपको आई कि यकीन नहीं? है। ये ड्रामेबाजी ना करो। एक मिनट जी, एक मिनट सारे चुप हो जाए जरा। ड्रामेबाजी ना करो, समझ आई कि नहीं? शे- बंदे दे बच्चे बन जाओ तो शायद दसना पिया। ड्रामेबाजी नहीं देखें। नहीं नहीं और मैं शायद- तेन कहना पिया, शायद मैं मेरी बात सुने, तेन देखें तब भी लास्ट आप- वार्निंग देना पे बंदे दे बच्चे बनो। ए ड्रामेबाजियां दिन भर ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਹਨੇ ਆ ਤੇ
शेख उस दिन भी आपके हाँ, यही ये होई ना, अल्फाज मैं थे, हुने आप हुने बात में को तो समझने लम्बे की पा लेना कोशिश है। नहीं करते। ये तो हुन दोबारा ड्रामा कीता दे शेख हद हो गई है। हजरत गाले वे कि मैं एक सवाल कीता सी ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। और लव भाई विचू के कटन गए होण के विचू लिखी सी बात मुझे क्लियर लगता हो है ये गई, यार लेकिन मेरी बात बात हुई, सुनिए बात कि हुई। मुझे लगता है मेरी एक छोटी सी मुझे बात लगता है की ये वजह जो से मैं लव है ना, गलतफहमी में मुझे आ लगता गया है हूँ। ये पक्का कादियानी है, ये लव अरे नहीं पक्का ना, कुरकुरी कादियानी भाई है। आते हैं यहीं पर नहीं आते नहीं हैं। कुरकुरी भाई ये ये कादियानी। कादियानी नहीं 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 है है भाई, कुरकुरी नहीं भाई है। किसी को भाई कादियानी देखो, बोलना यही भी चीज गुनाह है, यही मैंने हाँ किसी को कादियानी मुसलमान को तो यही कादियानी मैंने बोलना भी गुनाह है। शेख नहीं, साहब नहीं, ने भी नहीं, मुझे यही कहा था कि आप कादियानी हो। हाँ, हाँ, यही मुझे मैं अभी लगता कह रहा हूँ जो हाँ, कुरकुरी आप कह रहे हैं। हाँ हाँ तुम कादियानी हो। मैंने जब ये सवाल किया, मेरी बात ना सुनो, करो सवाल, तुम ना करो। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, मैं ना करो तुम कादियानियों पे सवाल। लानत भेजता ना हूँ, मैं करो मिर्जे तुम। पे लानत तुम भेजता ना हूँ। क्यों करो। ना करूँ, क्यों ना तुम करूँ? ना करो, तुम तुम कौन ना होते करो। हो? क्यों ना करूँ? ना करो क्यों ना मौलाना, करूँ? तुम मौलाना, कादियानी हो। तुम्हें सब लोग इतने समझा रहे भाई, जो हो गया सो हो गया, अफ़ल्लाहु अम्मा सलफ। नहीं भाई पत्थर का दौड़ नहीं है, वो मौलाना, सर को भेड़ बकरियां। मौलाना जाओ दूसरे ब्रोडों पे बैठो, आओ मेरे साथ गले लगा लो, मेरे ब्रोड पे आओ मौलाना, बैठो, मैं तुमको रोजाना जो है ना दो शेर मार दिया करूंगा। अब बैठो मुफ्ती मेरे साहब साथ ये कोई मौलाना। पत्थर का दौड़ नहीं, मौलाना मेरी छोड़ो बात भाई, सुने क्या ना, ये बात है पत्थर का तुम्हारे दौड़ मौलाना? है इतने ना, भी ये हम इतने भी भेड़ क्या बकरियां। कुरकुर हो ठीक रहे है, तुम्हारे अंदर? जो बात हो रही है उसका जवाब दो, इतने उसका भी जवाब क्या आपके कुरकुर पास हो रहे नहीं हैं? है। आपने इतने मुझे भी अभी कुछ- कैसे क्यों कहा कि आप मैं कह रहा हूँ कादियानी तुम हैं? कादियानी हो यार, आपने क्या क्यों बोला यार, आप बैठो कादियानी हैं? यार, बैठो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें शेर मारता हूँ, छोड़ दो मौलाना, ये प्रिंसेस कौन देख सी रही बात हैं? है यार? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर कुरकुरी इतने भाई, प्रिंसेस खिलाफ तो मुफ्ती सही नहीं है साहब ना। सही पकड़ा है आपने। भाई ये आप लोग आपकी सब डिंग चुप हो डांग जाएं प्लीज। जिंदाबाद। अजीब मिनट चुप हो अजीब जाएं खबासत है यार, बस मुफ्ती नहीं, साहब मेरे पास आ जाए, मैं अपना शजरा नसब मौलाना, रख देता हूँ, ये अपना रख दें, ये तुम्हारे साबित शजर करवा दें नसब ये से मैं क्या कादियानी नहीं करूँ? है। तुम्हारे शजर से मैं खेल खाऊं? उतार दें इनको, दोनों को नीचे उतार दें। देखे, मैंने शेख हाँ, साहब से बात यही नहीं, रिक्वेस्ट दोनों को की है उतार कि दो एक नीचे। बंदा कादियानी नहीं है, उसको कादियानी सर, क्यों कहा दोनों को जा नीचे रहा उतार है? मुझे इस चीज एक का मिनट गुस्सा है। बात सुनने, आप लोग बस बात खत्म करें, खत्म। उनको गलत फहमी थी, अब उनको किसी वो टोन में होंगे, इसलिए उन्होंने आपको भी उसमें लताड़ दिया। अक्सर उन्हें पता नहीं चलता। आप ये बात देखें, हम सब ये बात समझते हैं, यहाँ पे हम सब जो लोग बैठे हुए हैं, हम ठीक है, वो बात सब क्लियर हो सुनते गई, हैं, अब आप भी खत्म हो गई वो थोड़ा बात। सा कम लेना। अजीब हाँ। बात है यार। खाम कायदा देखे मौजू इतना उलमा- अच्छा चला हुआ था, एक- संजीदा एक- मौजू के ऊपर एक मुफ्ती गुफ्तगू हो साहब रही आकर है यहाँ और उलमा खाम का ही आके बीच में माशाअल्लाह एक बयान वाज़ नसीहत कर रहे चाची को लोगों को। बात करने दें। नहीं बोले आप। अजीब बात है यार। चलिए अल्लाह से बस शर्म कोई करो नहीं, मौलाना। ठीक है भाई। ऐसा क्या नाम है आपका? लव इज लाइफ साहब, नाम नहीं मुझे पता आपका। ऐसे नहीं करते, बंदे बन के रहते हैं। और कभी कोई इस तरह की गुफ्तगू करनी हो तो जो हमारी डिबेट वाली ब्राडें होती हैं, बल्कि उमेर बाप की ब्राड के ऊपर भी डिबेट होती है, लेकिन मौजू देख लिया करे, मौजू कौन सा छिड़ा हुआ है, मौका महल को देख के बंदा गुफ्तगू करता है। समझ आई कि नहीं ये तरीका कार? मैंने पहले आपसे माजरत अब बस की ठीक है, है, मुझे बात चुप हो मौका जाए। नहीं मिल मेहरबानी, रहा आप था, मैंने मजीद आपसे माजरत पहले कर करके ना की है। तो मजीद काम अभी आपने ये- बिगाड़ना है, वो माजरत हो गई है आपकी। तो बात ये है साहिबान, ये अल्लाह रसूल का ये महीना, ये रमजान शरीफ की इतनी बरकतें, तमाम महीनों का सरदार महीना, और इसमें इबादत बहुत ज्यादा होती है, रियाजत बहुत ज्यादा होती है, सदका और खैरात बहुत ज्यादा होता है। तो इसके अंदर कम से कम दीनदार और दुनियादार दोनों तबकों को चाहिए कि भाई अल्लाह से लो लगाएं, अल्लाह से लो लगाएं और अपने जो नकायस है वो दूर करने की कोशिश करें। जो जिसके भी जो नकायस हैं, अल्लाह सत्तार है, उसने छुपाया हुआ है तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारी करतूतों को। पता नहीं तुम हजारों करतूतें करते हो, वो तो अल्लाह को पता है ना। वो देखो, वो तुम्हारे कितना प्यार करता है तुमसे कि उसने तुम्हारे गुनाहों को छुपा के रखा है, लोगों के सामने जाहिर नहीं किया। तो ये बातें हैं। और शुक्र, फिर वहां पे शुक्र बनता है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र। शुक्र करोगे नेमत बढ़ेगी, शुक्र से नेमत बढ़ती है। और तुम फिर अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करोगे तो वो फिर नेमत छिन जाएगी। तो ये बहाने से अपने अल्लाह को याद किया करो, दिल लगियां किया करो, लव किया करो, अल्लाह पाक से किया करो, अल्लाह पाक के प्यारे नबी से किया करो।
اولیاء اللہ سے پیار کیا کرو, اللہ والوں سے پیار کیا کرو, جو اللہ والے ہیں, جن کو کہتے ہی ولی اللہ ہیں, یعنی اللہ کا دوست, ان سے پیار کرو. تو اپنی زندگی کو کوئی ایسے گزارے, اعتدال میں گزارے. تو گھر کے جو خانگی معاملات ہوتے ہیں, گھروں کے جو معاملات, ان کو آپ دیکھو میاں بیوی دونوں نے سلجھانا ہوتا ہے. تو کوئی ایسی نوبت نہ آنے پائے کہ طلاق تک بات جائے. بھائی کوئی نہیں, اگر شوہر سے کوئی غلطی ہو گئی ہے, وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے, لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے, لڑکیوں کو پھنساتا ہے, لڑکیوں کے ساتھ یہ کرتا ہے, کیونکہ عورتوں کے عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے. کوئی دنیا کی شاید کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا یہ شکوہ نہ ہو کہ میرا شوہر جو ہے نا باہر عورتوں کے ساتھ اس کے معاملہ چل رہے. ہر عورت کی زبان پہ یہ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ اگر حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے, وہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے. اے بیوی صاحبہ, وہ تم سے بڑا تمہارا شوہر پیار کرتا ہے, تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. اور اے شوہرو, تمہاری بیویاں بھی تم سے بڑا پیار کرتی ہیں. حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مجھے یاد آ گئی ہے, فرمایا کہ عورت وقت کی کنجری ہی کیوں نہ ہو, وہ 1000 مردوں سے دن بھر میں منہ کیوں نہ کالا کرواتی ہو, لیکن وہ پیار سب سے زیادہ اپنے شوہر سے ہی کرتی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا ہو گیا ہے؟ جی کچھ نہیں ہوا جی, ابھی تو درس جاری ہے. اچھا درس جاری, ٹھیک ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپس میں کوئی اگر ہو جائے کوئی مسئلہ تو گھر میں بیٹھ کے پیار محبت سے, اگر عورت ناراض ہے تو شوہر کا کام ہے اس کو پیار محبت سے سمجھائے کہ میری بیوی یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے, ٹھیک ہے. اگر شوہر ناراض ہو گیا تو بیوی کا کام ہے اس کو پیار محبت سے سمجھا دے, بس اتنا ہی. اندر کا کام اندر خانے نپٹا لو. جی بے شک. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایم ملک صاحب, ایف ملک صاحب. میں کوئی گل کرنا چاہنا ہوں, اگر میں سسٹر اجازت دیو تے. عمر بابا مجھے اجازت دے, آپ حضرات تشریف رکھے, ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. میں تھوڑا سا مفتی صاحب ہمارا بھی ایک درس مفتی صاحب ایک بیچ میں. منٹ, شاہ جی ایک منٹ, شاہ جی ایک منٹ. آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے, فرمائیں جلدی. لو جڑا ہے نا جی اپنا کننگ آدمی ہے, یہ جان بوجھ کے جڑا ہے نا وہ شرارتی سوال کردا وے اور انہوں پتہ وے کی کر رہا ہے, اور انہیں لبادہ اوڑیا ہے ایک انہاں دا مسلمان ہونے دا. انفارچونیٹلی ہی از ناٹ, وہ پراپر پکا قادیانی, اور انہاں دا پورا وہ لے کے چل رہا وے جڑا وے پروگرام. کون؟ اے لو از لائف جڑا ہوندا ہے. اچھا یہ عمر باب ابھی نا انہوں نے جو آپ کہہ رہی تھی نا کیا ہوا استغفر ہے, اللہ نعوذ باللہ. میرا بھائی میری بات سنیں, یہ چیز آپ نے مجھے ثابت کروانی ہے. اگر آپ ثابت نہ کروا سکے تو آپ اپنے آپ کو قادیانی ڈکلیئر کرو گے. اور میرا بھائی گل سن, کیونکہ سحری آرگومنٹ کوئی نہیں ہے, آرگومنٹ کوئی عمر نہیں. باب ثابت کروانا مجھے ڈکلیئر کروانا ہے. کر رہے تھے تو وہ مسئلہ ہوا ہے تھوڑا سا. ایک منٹ شاہ جی, شاہ جی میرے خیال اللہ میرا بھائی پنجابی ان کو میں اپنا ایڈریس دیتا ہوں, یہ ثابت کروائیں گے. وہ گل سن نا یار, ثابت کرنے تین. کھلو جا توں ایڈا شیار, تو کھلو جا. جی پاجی بولو بولو. ایک منٹ, پنجابی تو سیار کوٹی بندہ میں, ٹھیک ہے, پنجابی بول. پاجی تسی میرے تے فتوی لا رہے ہو. تو اردو بولن لگا. میں گجراں دا الحمدللہ, کلکتے دی گجراں دا نال. یہ تواڈے کڑا دور ہے, کوئی بیلٹ ہے ساری. تسی بولو پنجابی بولو. اچھا میرے بھائی تینوں اگر دکھ لگا نا, تسی کہنا کی چاہ رہے ہو, میری گل تے سن, میری گل سنو. تو جے بولدا رہندا تے میں پھر تیرے اوتے بولدا رہواں دا. تینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے, مینوں بھی ہوندیاں نے. چپ کر کے گل سن پلیز. بھائی جان گل نہیں, گل ہے تسی جڑا فتوی لایا تسی بالکل غلط گل کیتی ہے. اچھا پھر او جے غلط ہویا میں کہاں تسی قادیانی ہو, تسی کر دے چیز برداشت.
ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ, ਖਲੋ ਤੇ ਜਾ ਹੁਣ ਸੀ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ, ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ मैं। पहले मुझे ये बताएं कि हुआ क्या है, मुझे पहले बात नहीं, क्योंकि मैं ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ सैरी बनानी थी, मैं नीचे ਕਿ चली ਮੈਂ गई थी। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਵ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀ ਬॉयਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਿਆ ਲਵ ਇਜ਼ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਅਬੂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ जी ਤੂੰ, ਅਬੂ ਜੇਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। भाई तू अपनी गल मैं सिस्टर ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਊਟਫੁਲ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਵ ਨਾ ਲਵੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਭਾਈ ਚੜਨਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਗਲਤ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ जी ਜੀ। मैं सिस्टर एक मिनट जी, ਤੁਸੀਂ प्रयास ਲਿਆ भाई, ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ जी, ਇਹਨਾਂ जी, ਨੂੰ। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, वो सारे मेरी गाल सुन, क्यों ना लो, तेरे वर्गे कादियानी नु ले लईए, वो बेहतर है। ਅੱਛਾ हंस के गाल ना टाल। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, प्याज भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम प्यारी बहन, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। आप में कोई बात करनी है तो आप अपने इन दोस्त में जाके के साथ बात कर सकते हैं। ये बंदा मेनू प्रूव करेगा या मन्नेगा कि मैं इल्जाम लाया, मैं अपना एड्रेस देना, फोन देना, घर दा नंबर देना, इथों दा नंबर देना, ए बंदा या मन्ने कि मैं इल्जाम लाया ते या ये प्रूफ करे, दो गल्लां ने, तीजी गल ही कोई नहीं। ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ये मेरी गल सुनना, तेनू तू गल सुनी सी पूरी, सिस्टर नाल गल करन दे, हुण गल दोबारा सुनी ध्यान नाल, शायद तेरी समझ आ जाए। नहीं तेरी कोई दुश्मनी चल रही है हज़रत ईसा नाल? से बात कर सकता हूँ। ओ यार तू भाई बात तो कर लेना कि बात हुई क्या है। सवाल दी वजह भी हुंदी है ना सिस्टर, सवाल दे पीछे रीजन हुंदी है, वजह दस तेरी दुश्मनी चल रही है। भाई वजह ही दसन दे ना, अभी सारी वजह ही दसन दे, तू चुप करना कि नहीं? म्यूट लगा लें, उससे पूछते हैं कि क्या अभी क्या मसला क्या है जी। लव इज लाइफ बताइए जी। मैं सिस्टर अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी। मैं सिस्टर आज से तकरीबन 1.5 माह पहले जब मैं आपकी ब्राड पे बैठा करता था तो याद है वो एक आदमी आया था जिसने गालियां दी थी, कहता था कि आपको कादियानियों ने प्राउड किया तो ये वो, तो फलाने शख्स ने ऐसे किया। वो पंजाबी ग्रुप के किसी नाम से आया था, तो मैंने भी उसको गालियां दी, तो मैंने कहा हाँ वो जो भी है आपका मसला क्या है। उससे कुछ दिन बाद मैं शाह साहब की ब्राड चल रही थी, तो गुजरते हुए मैं वैसे ही 5 मिनट बैठ गया। बेसिकली मैं रेगुलर सारा दिन आपकी ब्राड पे बैठा करता था, तो उधर शेख साहब से किसी आदमी ने सवाल किया कि शेख साहब ये जो कादियानी हमसे सवाल करते हैं कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदा साबित है, इसका जवाब क्या है? शेख साहब ने उसकी बिस्ती करके उसको झाड़ के नीचे फेंक दिया। शेख साहब ने कहा कि भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਆਲਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ठीक है। उसी से जब उस बंदे ने ये सवाल किया उसी ब्राड में, उससे एक दिन पहले यूं हुआ है कि आपकी ब्राड पे मैं बैठा था, आपने बोला मैं ब्राड छोड़ रही हूँ, मैंने अपनी राय दी, मैंने कहा सिस्टर आप ब्राड ना छोड़ें, आप ब्राड के 2 टाइम कर लें, तो या आप ऐसा करें तर्जुमा क्लास की ब्राड अलग बना लें, लेकिन किसी को ब्राड ना बना के दें। इस तरह की हमारी बातें चल रही थी, जिसमें मैंने आपको ये भी कहा कि लोगों को बताएं कि असरे हाज़िर के फितने ये हैं और इनका जवाब ये है, तो आप प्लीज़ ये कुरानिस्ट और ऐसे वैसे लोग ऊपर लेके ना आए, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इस तरह की बातें हो रही थी। उन्हीं दिनों में शेख साहब की ब्राड पे जब आदमी ने ये सवाल किया कि आसमान पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िंदा साबित करें, शेख साहब ने उसकी बेइज्जती की, उसको जवाब दिया कि हम आलिम दीन हैं, हम किस लिए बैठे हैं, आप उन कादियानियों को हमारे पास लेके आओ। जिसके अंदर मैंने शेख साहब से, मुझसे शायद गलती हुई है, मैंने शेख साहब से गुजारिश की, मैंने कहा शेख साहब देखें वो भी हमारा भाई था, मुसलमान था,
اگر اس نے یہ سوال کر لیا ہے تو ہمیں آپ مدلل طریقے سے سمجھا دیں تاکہ کل کو کوئی قادیانی ایسی بکواس کریں تو ہم اس کو اس کا منہ توڑ جواب دے سکیں۔ شیخ صاحب نے جس کے نتیجے میں مجھے کہا کہ ایک بندہ گھروں دہی لین گیا ہے، ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਏ, ਮੇਰੀ ਬੇਗਮ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈਣ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਪਰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਾਂਦਰ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਲੈਣ ਹੋ। میں نے کہا شیخ صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، ادھر نہیں جانا چاہیے، لیکن میں سسٹر میں ایئرپورٹ پر ہوں اور میں جانے لگا ہوں، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔ بھائی بات سن لے، صرف ایک منٹ بات پوری سن لے، سفر ہو صرف آپ کا، ایک ہماری منٹ۔ بڑی دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے جو ہے اپنی منزل تک پہنچائے، جزاک اللہ۔ اچھا السلام علیکم ام سسٹر، جی وعلیکم السلام، کاشف شیر، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ جی؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سے ٹھیک؟ جی اللہ کا شکر، جی میں سن رہی ہوں، آپ بات کریں۔ میں براڈ پہ جب شیخ صاحب سے میں نے صرف اتنی سی بات کی، میں نے کہا حضرت آپ ہمیں اگر سمجھا دیں، رہنمائی فرما دیں تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ ہم ان لوگوں کو جواب دے سکیں۔ شیخ صاحب نے مجھے بھی مطلب اپنے انداز سے جو ان کا انداز بیان، انہوں نے کہا کہ ہم کس واسطے ہیں، ہمارے پاس لے کے آؤ۔ میں نے انہیں کہا شیخ ٹھیک ہے، لیکن میں ام سسٹر کی براڈ پہ سارا دن بیٹھتا ہوں، میری ان سے ایک اختلافی رائے ہے۔ انہوں نے بولا جی وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ اس طرح کے لوگوں کو اوپر لے کے آتی ہیں، ان سے مناظرہ کرتی ہیں، میری خواہش یہ ہے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو نہ لے کے آئیں، ہم کو ڈائریکٹ سمجھائیں کہ آج کل کے فتنے یہ ہیں اور اس کا جواب یہ ہے۔ شیخ صاحب نے نیچے اتار دیا، پیچھے سے کہہ دیا جی یہ بھی انہی میں سے تھا، یہ بھی قادیانی ہے، اس طرح کے سارا دن ہمارے پاس آتے رہتے ہیں تو ہم کو نہیں سمجھ آئے گی۔ میں نے آپ کی براڈ پہ آنا چھوڑ دیا۔ مجھے پرنسز نے میسج کیا تقریباً کوئی 20 دن بعد کہ بھائی کیا بات ہے، آپ ناراض ہیں، آپ آ نہیں رہے۔ میں نے آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گا، میں نے ان سے یہ بات کی کہ یار مجھے پتہ نہیں ام سسٹر پہ شک ہے۔ جی میں نے بولا مجھے ام سسٹر پہ شک ہے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا میں شیخ صاحب کی براڈ پہ گیا تھا تو میں نے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ ساڑھے کو لے کے آؤ، تسی کیوں جواب دیندے ہو؟ تو میں نے یہ ان سے بولا کہ میں ادھر بیٹھتا ہوں تو وہ تو بتاتے ہیں تو آپ بھی بتاؤ۔ تو شیخ صاحب نے کیا وہ بھی ہو کوشش تو تسی بھی ہو، یہ چل نکل۔ تو میں نے کہا اب شیخ صاحب یا ام سسٹر مجھے اس چیز کا مطلب کنفرم نہیں ہو رہا کہ ہم کس کی بات مانیں، کس کے پیچھے لگیں۔ میں اندھی تقلید کیسے کسی کی کر سکتا ہوں؟ وہ کہتی ہے ام سسٹر سے پوچھ لیں، کسی سے کنفرم کر لیں۔ میں نے پھر اسے یہ کہا کہ میں کی کنفرم کراں، مینوں دس، یا کس سے کیسے کنفرم کروں، ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں۔ خیر پھر بھی میں نے کچھ دل کو سمجھایا، میں نے کہا یار ام سسٹر وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے میں 1 مہینہ مسلسل بیٹھا ہوں سارا دن بھی، تو مجھے ایسی چیز نظر نہیں آئی۔ اگر قاری صاحب نے کوئی بات کی ہے، ہو سکتا ہے ان کی کوئی غلط فہمی ہو، یا ہو سکتا ہے مجھے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہو۔ اچھا آج شیخ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اپنا پروگرام کر رہے تھے، میں نے کہا شیخ صاحب معذرت ہے میں آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی میں تھوڑی دیر تک بتاتا ہوں۔ میں نے کہا شیخ صاحب ایک بندہ ہے وہ اولیاء اللہ کا احترام کرتا ہے، عقیدہ توحید پر گامزن ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا ہے، ختم نبوت کا عقیدت مند ہے، اور اگر اس کو کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ آپ کافر ہو، آپ نان مسلم ہو یا قادیانی ہو، تو اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ شیخ صاحب نے مجھے کچھ دیر بعد اس کا جواب دیا کہ یہ اس کا اسلام دیکھ کے، اس کا حلیہ دیکھ کے، مطلب اس کی ظاہری کو دیکھ کے تو پھر بتایا جا سکتا ہے۔ میں نے پھر ان سے کلیئر کیا، میں نے کہا شیخ صاحب میں نے آپ کو بتایا تھا میں امے کی براڈ پہ بیٹھتا ہوں، میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ ایک آدمی نے سوال کیا تھا، آپ نے اس کو جھاڑ پونچھ کے نیچے پھینک دیا تھا، تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ جھاڑ پونچھ نہ کریں، آپ لوگوں کو بتائیں اس کا طریقہ کیا، امیں بھی بتاتی ہیں، ہماری اصلاح فرمائیں۔ تو آپ نے کہا تھا تو امے دی براڈ تے بنا تم ہی ہوئی ہیں تو وہ بھی ہوئی نہیں۔ یہ بات کرنے کے کچھ سیکنڈ بعد آپ نے بول دیا تھا یہ قادیانی ہے، اس طرح کے سارا دن آتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا شیخ صاحب اب مجھے صرف یہ بتا دیں میں قادیانی ہوں یا جس کی براڈ پہ بیٹھتا ہوں میں وہ قادیانی ہے، یا آپ نے ایسا کیوں بولا ہے؟ بجائے کلیئر کرنے کے، بجائے بات بتانے کے آپ ایسا کر رہے ہیں۔ اچھا یہی سوال اسی بھائی صاحب نے مجھے ابھی کر دیا ہے، یہ جو ابھی بڑا بک بک کر رہا تھا کہ تمہیں ضرورت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ زندہ ہوں، یا بھائی مجھے تو کوئی ضرورت نہیں، میرا تو عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے غلطی صرف یہ کی ہے کہ ایک آدمی نے شیخ صاحب سے سوال کیا تو میں نے یہ بول دیا کہ شیخ صاحب اس کو اس کا جواب دیں۔ پھر ایک کرکرے آیا ہوا تھا کہ کرکری وہ کیا تھا نحوس، وہ بھی کہہ رہا تھا یہ قادیانی ہے، اس کو نیچے اتارو۔ سسٹر بات یہ ہے کہ اگر ایک بندے نے آپ سے کوئی سوال کر دیا
आपने उसका जवाब नहीं देना वो अलग बात है, लेकिन आप उसके ऊपर फतवा कैसे लगा सकते हैं? अभी ये बंदा मुझे कह रहा था ये कादियानी है, तो ये मेरे ऊपर कुफर का फतवा कैसे लगा सकता है? या तो ये मुझे साबित करेगा कि मैं कादियानी हूँ, मैं अपना मलेशिया का ड्रेस, अपने गांव का गुजरांवाला का ड्रेस सारा देता हूँ, ये जाके देखे और ये मुझे अपनी फैमिली और अपने दीन इस्लाम के मतलब बताए। मैं इसको अपने मजहबी फैमिली, हमारा घराना अल्हम्दुलिल्लाह मजहबी है, ठीक है, मैं इसको अपना बताऊँगा। ये बंदा मुझे अब साबित कराएगा कि मैं कादियानी हूँ। अगर ये साबित ना करा सका तो ये सबके सामने बोलेगा कि मैं जो है माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। दो ही चीज़ें हैं, जो इस्लाम में इल्ज़ाम की सज़ा है आप वो खुद बता दें। अभी ये देखें, मेरी शुरू से इख्तलाफी राय, इख्तलाफ नहीं, मेरी इख्तलाफी राय है कि आप कभी कुरानिस्ट ले आती हैं, कभी कोई ले आती हैं। मैं ये चाहता हूँ कि उम्मे सिस्टर उन लोगों को ना लेके आएँ, आप हमें खुद बताएं कि उनके सवाल ये हैं और जवाब ये हैं। वो कोई बात ऐसी कर जाते हैं कि हमसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इस राय में आपसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हूँ। पहले मैं अपनी बात तो सबसे एंड में करूँगी, आप सब लोगों की राय जो है ना वो ले लूँ, ठीक है। बिनते हवा क्या फरमाएंगे आप? ये में मुझे हैरानगी होती है कि ये लोग इस तरह क्यों सोचते हैं। जी, हम जो काम कर रहे हैं उस काम को, उस नजरियात को, उस बुनियादी चीज को क्यों नहीं समझते। जो आता है एडवाइस देकर चला जाता है। आप हमारा हौसला बढ़ाने के साथ हमारी दोनों मदद करने के लिए के बगैर आप आकर ये क्यों आया, वो क्यों आया, ये क्यों आया, ये क्या बात हुई है। आप हमारी नजरियात को नहीं समझते। ये सिस्टर एक कुरान एक पाक बंदा रेगुलर ले रहा है, साफ़ी सिस्टर एक बंदा रेगुलर ऑनलाइन क्लास ले रहा है, वो अपने आप को मैसेज में हर जगह पे आपको मतलब आपको सेफ्टी दे रहा है, अपने आप को हाजिर कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ठीक है। वो सारा दिन बैठता है। अगर वो किसी मुफ्ती दीन की ब्राड पे जाए और मुफ्ती दीन से सिर्फ इतना सा सवाल कर दे कि शेख साहब ये जो बंदा सवाल कर रहा है आप इसको समझा दें, हमारे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा। आगे से मुफ्ती साहब बोलेंगे कि तू कादियानी है, और जो मुफ्ती साहब के हमायती हैं वो भी अंधी तकलीद में आके कह देंगे तू कादियानी है। ये कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी चीज़ें? अगर हमारे साथ ऐसे करेंगे तो हमें क्या ज़रूरत है आने की, बैठने की, इतना कुछ करने देखो की। भाई साहब, अभी ये बंदा कह रहा था इसको ऊपर ना लें, ये कादियानी है। आपको अगर उनमें कादियानी का है ना तो ये उनकी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि वो उनकी हम सबको पता है कि मुफ्ती मुबशर कैसे हैं, हम सबको पता है, सिस्टर पता है ना। नहीं नहीं, सिस्टर मेरी पूरी बात पहले जी मेरी जी पूरी बात सुने आपने। मैं जी आपकी जी सॉरी बात सर, नहीं बोले सुनी। आप। दूसरी बात यह है कि अगर आपको उनने इस तरह का कोई लफ्ज बोल दिया, आप नीचे उतरकर वापस आकर आप उनसे मुकाबला करने के बजाय आप उनको नरमी से बात करें। आप कहते हैं ना दीन इस्लाम क्या है, अगर उनसे कोई गलती हो गई है तो आप उसको पकड़ कर क्यों बैठे हुए, दरगुजर करें चले। सिस्टर मैं पकड़ कर नहीं बैठा, आपको पता है पूरा दिन गालियां इस खाते एक हैं, आपको सबक हासिल होता है वहाँ बैठे। ये देखे उमर बाब एक अच्छी औरत है, उनके पास एजुकेशन है कुरान की, कुरान पे बात करती हैं, आयत पे बात करती हैं और हम लोगों को भी साथ सिखाती हैं। और उन लोगों से हमें ये इसी उम्मीद पे कि शायद किसी के दिल में किसी लफ्ज़ का असर पड़ जाए और सीधी रास्ते पे हो जाए। आप लोग हमारा हौसला अफजाई करने के लिए ये जो आप मुफ्ती मुबशर साहब से जो आपने जो लगाया हुआ है ये बहस हो कि उन्होंने ये किया मेरे साथ, उन्होंने ये किया, आप उनके साथ दरगुजर कर दे। वो आपके उस्ताद है, आपके बड़े हैं, अगर कह गए तो कहने दो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मुबशर साहब उनका ले जा, उनकी गल बात किस तरह की है। आप इस चीज को क्यों नहीं समझते। आप कहते हैं मैं एक इस्लामी मजहबी फैमिली से तल्लुक रखता हूँ, लेकिन हमारी बुनियाद ही इतनी कमजोर है कि हम छोटी छोटी बातों से अपनों से ही लड़ पड़ते हैं और फिर दूसरों को कहते हैं उसको क्यों बुलाया। हमने उनको नहीं बुलाया, वो खुद आते हैं, वो हमें रद्द करने के लिए आते हैं। आप लोग हमारी मदद करें, हौसला अफजाई करें अपनी बराडू पे, इनको नाकाम करने के लिए, दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए, उनको गुमराह से बचाने के लिए। आप आपस में आकर हमारी ब्राड पे आकर के ये कहेंगे ये एक हमारी ये जो ब्राड है ये एक जरिया है। हमारी बुनियादी चीजों को देखें, हमारी सिस्टर हर बुनियादी बात के पीछे देखें कि हमारा क्या है। हम पे तनकीन मत किया करें। जी साथी एक बात से बात कर लो जी मोहम्मद। अस्सलाम आप ये नहीं समझ रहे थे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ। अब उसकी रीजन क्या है? खामोश हो जाओ ना, अब आप खामोश हो जाओ प्लीज।
जी मोहम्मद रफीक साहब अस्सलाम वालेकुम जी आप वालेकुम अस्सलाम। ये मोहम्मद क्या नाम है उनका भी? मोहम्मद नवाज साहब, आप म्यूट लगाएं, आपके पीछे से शोर आ रहा है, प्लीज। जी मोहम्मद रफ़ीक। अच्छा लव इज़, मैं भाई को जानता नहीं हूँ, मैं आपसे एक सवाल करूँगा, एक दो सवाल, आप उसका पहले जवाब दे दें। आप कंदियानी के बारे में क्या जानते हैं? लव इज़ लाइफ। सर आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हैं? देखो ये जो आपको इस 30-35 बंदे आपको मैं बात बता सुने मेरी, अभी सुन लेना। हाँ जी, मैं आपको पहले समझाता हूँ। मैं इसलिए कि बदगुमानी गुनाह है। मैं ना तो आलम हूँ, मैं तो आलमों के जूते उठाने वाला हूँ, ठीक। और जितने भी आपको बहन भाई सुन रहे हैं ना, इनकी सलाह अपनी सलाह के लिए, हमें किसी को बिना समझे, बिना देखे, बिना प्रूफ के ना शिया या ना कदियानी ना उसको जाहिर नहीं करना चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, अगर किसी को शक हुआ है तो आप ववेला मत बचाएं, आप डायरेक्टली उससे बात करें। जिस तरह मेरी बहन कह रही थी, आप उसे पूछे भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, ठीक है, मुझे आप कदियानी क्यों कह रहे हैं? वजह जो आप में वो कुछ बात उसने देखी होगी, हमें इनमें से शायद किसी को नहीं पता होगा उन्होंने क्या कहा, लेकिन आप बरात पे लाइव नहीं कहना चाहिए। आप डायरेक्टली उनसे पर्सनल बात करें, भाई आपने फला बरात पे मुझे कदियानी कहा है कि ये आदमी कदियानी है, क्यों किया है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हूँ, मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। पहली बात कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। कदियानी को हम गैर मुस्लिम कहते हैं, उनको हम मुसलमान नहीं तस्वर करते, नहीं कहते। क्यों? जो हमारे नबी को नहीं मानता हम उसको नहीं मानते, जो हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता हम उसको काफर डिक्लेयर करते हैं कि वो काफर है, इस्लाम में उसे दखल नहीं। और जो मेरे बहन भाई सुन रहे हैं, आप ये ज़हन में रखें कि ये जो कदियानी है ना, ये नमाज भी पढ़ते हैं, ठीक है, और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ज़ाहिरी मानते हैं, यानी कि वो अहमदी हैं, ठीक है। अहमदी यानी कि हम कहते हैं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो वो कहते हैं अहमद। वो जो मोहम्मद कहते हैं तो अपने नबी को यानी कि अहमद को उस अहमद मिर्जा को तस्वर करके कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम तस्वर नहीं करते, हमें अल्लाह पाक से बचाए। तो चलो मैं मुख्तसर करता हूँ कि आप ये बताएं कि आप कदियानी को क्या कहते हैं? कदियानी के बारे में, लाइफ इज लाइफ, लव इज लाइफ, कदियानी के बारे में क्या आपका ख्याल है? जी मेरा राय ख्याल ये है कि ये जहन्नम के कुत्ते हैं, मलून हैं, काफिर हैं, अल्लाह ताला का अज़ाब इन पर मज़ीद तरीन नाज़िल हो। मेरे पास बाहवाला, ठीक है, बाहवाला हर चीज़ बाय रिटर्न पड़ी है। अच्छा माशाल्लाह। नहीं सुने, मैं आपको बताता हूँ मिर्ज़े के दजल। मैंने अभी आपको एक चीज़ और क्लियर करता हूँ। मैंने उम्मे सिस्टर को परसों अपना एक पर्सनल आईडी बना के मैसेज किया है। आईडी में अभी यहाँ पर भी मेंशन करूँगा, उस आईडी के बुत शिकन के नाम से मैंने आईडी बनाई है। मैंने मिर्ज़े की एक पिक लगा के उस पर ऊपर एक सॉन्ग लगाया कि कन्फर्म लान दिया, और मैंने उसके ऊपर मेरा उसको मंशूर किया सिर्फ यही है कि उलमाए इस्लाम, उलमाए हक़ के मतलब ब्रॉडकास्टिंग बंद करो, नहीं तो मिर्ज़े के दजल के मतलब अन करीब मैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैं सिस्टर से पूछ लें, इनको आज से 2 दिन पहले उससे मैसेज आया, वो मैंने किया। जी मैं मिर्ज़े के देखें, कहीं पर इसने खुदाई का दावा किया है, कहीं पर इसने मोहम्मद सल्लल्लाहु होने का दावा किया, कहीं पर इसने इमाम महदी अलैहिस्सलाम का दावा किया, कहीं पर इसने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम होने का दावा किया। इसको तो खुद नहीं पता कि वो कौन है और ये कौन है। ये तो जहन्नम के कुत्ते हैं, सूअर हैं, खंजीरों से भी बदतर है। मेरा ये अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं लानत भेजता हूँ तमाम मरज़इयों पर, ये अहमदियत अकायद वालों पर, इनके नज़रियत पर, और जितने भी ये आजकल इनका एक और चीज़ है, ये भी कह देते हैं जी हम कादियानी नहीं, क्योंकि वो जमा पला पाकिस्तान में है, अभी कनाडा में है, तो कादियानी वो है जो कादियान में रहने वाला है। ये इन चीज लोगों के दजल और फ्रेब हैं। आप इनसे पूछो, आप अहमदी हैं। देखो हम आपको देखो, ये जो अकायद होते हैं ना, ये या तो बंदे को बयान करने से पता चलते हैं,
ظاہری بندے کو بندہ نہیں پہچان سکتا ایک بات پہ، ٹھیک ہے بھائی میں تو اس پہلے سے دن سے ہمیں بیان کر رہا ہوں کہ میں قادیانیوں کے لیے انشاءاللہ ان کے کفر کے لیے، ان کے کفری عقائد کے لیے موت بن کے کھڑا ہوں اللہ جب پاک تک میں زندہ ہوں، اللہ پاک ختم کو نبوت کا دفاع ہم کروں گا دعا اور کرتے انشاءاللہ ہیں۔ مرزے کے بات کفر کو سنیں میں نا بیان کرتا رہوں گا۔ بھائی بات سنیں، میری جی بات سنیں بھی، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک اس بار آپ کو استقامت دے اور آپ کو اس کی جستجو دے اور ہمت دے، ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، قادیانی کے ساتھ آپ اس طرح ان کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ شانہ کی بشانہ بات کھڑے کریں گے، ہم ہیں۔ آپ کے لیکن ساتھ میں دیں گے۔ آپ کو ایک عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح دیکھو، ہمارے سب کا المیہ یہ ہے، اس میں بھی شامل ہوں، کافی میرے بہن بھائی بھی اس میں شاید شامل ہوں گے، کیونکہ ہم صرف جو ظاہر دیکھتے ہیں نا، بس ایک طرف بول دے گا نا، ہم فوراً اس پہ ایکشن لے جاتے ہیں۔ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں نا، مجھے نہیں پوری بات کا پتا کہ کس براڈ کو انہوں نے آپ کو کہا اور کیوں کہا، اس کو چھوڑ، لیکن آپ ابھی بھی 30-35 بندے آپ کو سن رہے ہیں، آپ بار بار کہیں گے مجھے کہا، تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہے، انتشار بھی پیدا ہوگا اور آپ کو لوگ پھر شک میں پڑ جائیں گے۔ اسلام میں تو بدگمانی بھی کفر ہے، گناہ ہے، کسی کے بارے میں بدگمان نہ رہو، اچھا گمان کرو۔ ہم آپ پر ابھی الحمدللہ میں آپ پر اچھا گمان کہتا ہوں کہ آپ مسلم ہو، سنی مسلم ہو، اور قادیانی کے آپ ساتھ خلاف ہیں، آپ کی باتوں سے ثابت ہوتا ہے قادیانی کافر ہیں۔ تو میں آپ کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح بلاڈ پہ جا کر یہ مت کہ مجھے اس نے کہا، مجھے کیوں، پہلی تو بات ایک بندے کی حمیت ہوتی ہے نا، جس بندے کو پوری دنیا جانتی ہے، مفتی صاحب، وہ کو پتہ چل جاتا ہے۔ مفتی صاحب جو دیکھو ہیں بھائی، وہ ہمارے بات سنو، عالم ہیں، ہمارے بڑے ہیں، انہی سے ہم نے دین سیکھا ہے، جی۔ ٹھیک ہے، بزرگان دین جو ہیں ان کے جوتے بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، میں مفتی صاحب کے کوئی خلاف نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے، جو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر بات کے پیچھے ایک بات ہوتی ہے، وہی اصل بات ہوتی ہے۔ شیخ صاحب نے اگر بول دیا، مجھے اس چیز کا کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، ابھی بھی کچھ بھی کہہ لیں، وہ میرے بڑے ہیں، شیخ ہیں، ہمارے حضرت ہیں، میرے یہ بات امام مت ہیں۔ کہیں، نہیں بھائی، بات سنیں، اگر آپ قادیانی نے چلیں جی، آپ بات کریں ابو بکر جی، ابو بکر بات کریں آپ جی، ابو بکر بات کریں آپ جی، اقبال مرشد آپ کریں بات، اقبال مرشد صاحب۔ اوئے، سارے میوٹ کر لگا کے بیٹھ گئے ہو، میوٹ آف کریں اور بات کریں۔ کرنی ہے بات آپ کر لیں۔ جی علی باجوہ صاحب۔ میرے نا سگنل ویک ہے، مجھے سکپ کر دیں، میں 2-3 منٹ کے بعد بات کر لوں گا۔ جی، ماشاء اللہ صاحب، السلام علیکم۔ جی ماشاء اللہ صاحب کریں بات آپ۔ جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک۔ وہ آج نہیں آیا یوزر؟ نہیں، یوزر ابھی نہیں ہے۔ ویسے دیکھیں یہ لوگ نا اچھا نہیں کر رہے ہیں، ہر براڈ پہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی یہ فرقے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں اب نا میں کل ایک براڈ پہ گیا تھا، ادھر حضرت عمر کی، حضرت عثمان کا نام اور حضرت ابو بکر صدیق کا نام انہوں نے ٹائلٹ میں پھینکا ہوا لکھ کے، اور حضرت عائشہ کو تو بس کھلا گالیاں دے رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ علامہ، میں اب کیا بولوں، نعوذ باللہ۔ یہ بھی قادیانیوں کی سازش ہے کہ یہ جعفری، حنفی، شافی جو ہیں یہ آپس میں السلام لڑائی علیکم کریں۔ بھائیو، بھائی ماشاءاللہ یہ امیں اتنا اچھی براڈ چلا رہی ہیں، اتنا اچھا کام کر رہی ہیں، آپ کسی کے براڈ پہ چھوڑ دیں فلاں پہ، آپ اپنی اچھی بات کریں بھائی، چھوڑ دیں، آپ چھوڑ دیں فلاں پہ ایسا ہو رہا ہے فلاں۔ ٹیمپریری طور پہ دیکھیں اس سے یہ لوگ مسلمان ہو کے ایسا کر رہے ہیں، میں ویسے ایک بتا رہا ہوں، بھائی ایک یہ اس دن ان کی بات براڈ پہ ہے نا وہ یوزر تھا، وہ قادیانی، تو اس نے علامہ صاحب کو گالیاں دی۔ چلو یہ ایسا کیا کریں، دیکھا کریں کہ جو اسلامک براڈ چلا رہے صحیح، جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلامک براڈ ہے، آپ وہاں پہ جایا کریں، ہر براڈ پر مت جایا کریں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا بھی ہے کہ جو جاہل ہوگا نا وہ کسی غیر کی کتاب نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اگر پڑھے گا تو شاید وہ گمراہ ہو جائے۔ آپ کو اگر قادیانیوں کے بارے میں معلومات نہیں ہے تو آپ اس کی براڈ پہ نہ جایا کریں، دیکھیں کہ یہ اسلامک براڈ ہے، اہل سنت ہے، اس پہ براڈ پہ جائے
अब तक आपको अगर नहीं पता, फिर अगर आपको कुछ सीखने का शौक है या पढ़ने का शौक है, जैसे ये ब्राड चल रही है, आप बाइक अपना ओपन करें, नाज शरीफ पढ़ें, नारा तकबीर, नारे रसाले लगाएं और नीचे उतर जाएं। मैं तो ये मशवरा देता हूँ। लेकिन आप अगर इल्म नहीं है तो आप जाएंगे तो शायद गुमराह हो जाएं। आपको पता नहीं है कि इस्लाम क्या है और कदियानी का। कितने ऐसे हैं जिनको कदियानी का सही पता भी नहीं। मेरे पास एक बंदा काम करता है, थोड़ी सी छोटी सी बात अर्ज करना चाहता हूँ, माजरत चाहता हूँ। उसने बोला कि मेरे वो रिलेटिव है मुल्तान के, तो वो उधर गए तो वो कदियानी हो गए। क्यों? उनको इस्लाम का पता नहीं था। वो क्या करते हैं कदियानी, कहते हैं कि हम भी तो नबी को नबी मानते हैं, हम भी तो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, हम भी तो ऐसा। वो बंदा आम जो फाम जिसको पता नहीं होता वो कहता है भाई ये तो हमारी तरह नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी कलमा पढ़ रहे हैं, वो कदियानी हो जाते हैं। तो इसलिए आपको अगर कदियानी के बारे में मालूमात नहीं है तो आलम दीन से इधर ब्राड पे नहीं, फिर सही कोई देखा कि वाकई मुफ्ती है, आलम दीन है, उनसे रहनुमाई लें। अगर आप ऐसी ब्राडों पे जाए, अपनी नाशरी पढ़े, नीचे उतर जाए। मैं तो ये मशवरा देता हूँ। और इधर मत कि फलां ब्राड पे ऐसा हो रहा है, फलां ब्राड पे ऐसा हो रहा है, ये इख्तलाफी है। ये माशाल्लाह जो दीन का काम कर रहे हैं ना, इससे भी हम दूर चले जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आएँ, अगर आपको आपके पास इल्म है तो इस्लामी बात करें, अगर ना आए तो ना शरीफ पढ़ें और अपना माइक म्यूट करें, दूसरी की सुनें। बस मेरा यही मैसेज है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो मैं माजरत चाहता हूँ। जी जी, थैंक यू अंकल समझाने के लिए। वैसे हमारा ईमान मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। हम क्यों ऐसे गुमराह होंगे। थैंक यू यार बात समझाने के लिए अंकल। ये आप लोग अगर नहीं समझ आ रही है तो नीचे बैठकर सुने कि कैसे अरबी की आयतें पढ़ रही हैं, कैसे लफ्ज़ है, किसका मतलब क्या है, किसका क्या है, समझे आप। अगर आप हमारे पास कोर्स वगैरह नहीं है, हमने ने कुछ किया, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सेंस दिया है, दिमाग दिया है, हम दूसरों की बातों को सुन तो सकते हैं ना, समझ तो सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो मैं कोई आलमा तो नहीं हूँ, मैं तो वैसे ही यहाँ बैठी हुई हूँ, इनके साथ हूँ। सिस्टर की बिल्कुल गई गुजरी एक शागिर्द हूँ, मैं उनसे सीख रही हूँ। सही है। तो मेरा अकीदा यही है कि मैं मुसलमान हूँ, मेरा खुदा एक है, मेरा रसूल एक है, मेरी जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल किया है, मेरा ईमान उस पे है, मैं उस पे डटी हुई हूँ। मेरे पास कोई एजुकेशन नहीं है। तो इसलिए अगर आप लोगों को नहीं समझ आती, आप बैठ के नीचे समझे, उनकी बातों को भी सुने और सोचे कि कितनी गिरी हुई बातें कर रहे हैं, किस तरह के गुमराह लोग हैं, किस तरह अपने यह है कि आखिर तो जीत इस्लाम की है। इस्लाम देखें सच्चा दीन है। जैसे ये लोग बातें करते हैं ना, इनका मिर्जा भी ऐसी बातें करता था। वो फिर मेड अली शाह ने इनसे वो हुआ था इनका चैलेंज, पता है आपको? उसकी क्या बात, जमात अली शाह का भी पढ़ के बंदा हौस के जैसे कोई नावल पढ़ के किसी की कोई स्टोरी थी, कोई वो वैसे ही करता था। वो एक साइको बंदा था, उसको इलाज की जरूरत थी। बिल्कुल पता नहीं कहाँ से ये देखे कि सर पे साफे की जगह पंजामा बांधता था, 10 महीने का प्रेग्नेंट था। पता नहीं क्या 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 बकवास है, आगे कुछ पढ़ना के दिखने। आज तक इनको ये नहीं पता कि उसकी कब्र क्या कहाँ है, ये नहीं पता कि उसको जमीन ने भी जगह दी या नहीं दी। वाशिंगटन में उसकी डेथ हुई थी। तो हमें अपने लोगों का तफज़ करना चाहिए। हमें अपनी जो लोग ये कुछ कर रहे हैं इनको रोकने की कोशिश करें, जो लोगों को नहीं समझ आ रही है उनकी मदद करें। जहाँ जो ब्राडें चलती हैं इनके खिलाफ जो बातें इन लोगों को, इनको जितना जितना नंगा करोगे इतना इतना हमारे लिए बेहतर होगा। जिसको नहीं पता होगा उसको भी पता चलेगा। तो ये क्या हुआ है कि एक ब्राड से उठ के दूसरे, आप इसको क्यों बुलाया, और हम इनको नहीं बुलाते, खुद आते हैं और खुद खाते हैं और हमें गालियाँ निकाल के चले जाते हैं। और इनका क्या है, वो सिर्फ एक नुक्ता पकड़ के हम लोगों को क्या करते हैं, वो इतना तंग करते सताते हैं कि ये हमें ये कहें वो कहें। कभी कभी हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कहते हैं कि हम इन जैसे नहीं है, कभी कभी हम भी बोल पड़ते हैं। बस वही। और देखिए मैं उस दिन यूजर आपको क्या बोल रहा था, छिपकली ये लटन पटन, उसको पता ही नहीं था मैं मेरा नाम छिपकली हो गया है। उसकी बातें सुन के हम हंस रहे थे। वो हम सबको गालियां दे रहा था। और दूसरे वो हमारे जो आए थे हाफिज, जिनकी आंखें नहीं थी, जी जी अलामा साहब है माशाल्लाह, वो बहुत अच्छे थे। उनके साथ भी ऐसा है। और जब मैं उसने गालियां दी उनको। हाँ, और वो कह रहे थे मुझे बहुत खुशी हुई है, मैंने रसूल सल्लम की खातिर मैंने गालियां खाई हैं। गालियां सुनी हैं हमारे लिए। तो
हमें अपनी परवाह नहीं है, लेकिन जब उस टाइम तकलीफ होती है, जब वो हमारे जो ना नबियों पे सवाल उठाते हैं, हमारे कुरान पे उठाते हैं, हमारे हदीस पे उठाते हैं, जब ये कहते हैं कि मिर्ज़ाई ईसा अलैहिस्सलाम है, मिर्ज़ाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मिर्ज़ा, वो इस तरह गंदे बंदे का नाम क्यों लगाते हो हमारे नबी के साथ? इस चीज़ का दुख होता है, इस चीज़ की कभी हम बर्दाश्त कर लेते, कभी नहीं होता है। कभी कभी ये लोग ऐसी बात कर देते कि हमें बोलने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि हमसे बचपन से सिखाया ही एक ही चीज़ गई है कि हमारे ये चीज़ है, हमारा ये दीन है, हमारा ये, हमारे अब अगर हम दीनदार हैं तो हमारा ईमान पक्का है, हम किसी से गुमराह नहीं हो सकते, लेकिन किसी को ये भी राइट नहीं देते कि हमें आकर कोई तंग करे। इसलिए आकर हम पे तनकीद शुरू कर देती है, आप औरतें हैं, आप गैर महरम से बात क्यों करती है? आप करें ना, रोके इनको, हम नहीं आएंगी। इस्लाम में तो मर्द औरत बराबर है ना। बिल्कुल। तो आप अपना काम करें। अगर आप औरतों की आप इतने अच्छे हैं, इतने पक्के ईमानदार हैं, तो आप औरतों की ब्राड पे आए नहीं, जाए अपनी ब्राड खोल के उधर अपनी जो शुरू कर दे। तो हमें हौसला देने के लिए, हमारी हिम्मत बढ़ाने के जगह आप आकर हम पे ही तनकीद करते हैं। एक और दीन हासिल किया हुआ है, उसमें पड़ा हुआ है, वो फैला रही है, वो दिला रही है आप लोगों को, आप उसे लेने अच्छी बात है ना, आकर उल्टा उसी पे तनकीद करती है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों नहीं समझते हो? अब उसके नजरियात को क्यों नहीं समझते?